Shifting focus to the state of Bihar, where Chief Minister Nitish Kumar, and this is his first reaction on the IAS officer who mocked and rebuked a student on stage at an event in Bihar, and this is for seeking sanitary napkins at subsidized rates. Now, the Bihar Chief Minister says that he has taken cognizance of the issue and stern action will be taken if the concerned officer is found guilty. हमको सुबह ही यहाँ कार्यक्रम के पहले पता चला कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वहाँ उपस्थित कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को बुरा लगा है। वही हमने कहा कि तुरंत इसके बारे में जानकारी ली है और तत्काल हमने कह दिया है वो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं महिलाओं के लिए। और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार जाते रहे देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज़ हुआ था वो रिलीज हुआ था, तो हमने तत्काल एक एक चीज़ को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए सब लोग। Aditya joins us on the phone line for more on this. Aditya, sad state of affairs in Bihar. You know, a girl student raises concerns and some very, legitimate concerns, and she's shot down, and the whole thing now becomes a joke. For sure. I mean, as far as the recent turn of the events in Bihar is concerned, of course, it is nothing but a jolt to what we call good governance out here in Bihar. Interestingly, it must be mentioned here that there was a girl who was actually called by the WCDC in the program wherein even State Development Commissioner Vivek Singh was also present, and there she actually harnessed that particular platform to raise their voice, to raise the issues actually being faced by she and people from her community. But that being said, the response that actually was triggered by the query she made was something very different. And interesting to note here is that there are several sections who are actually making the different critical analysis of the statements made, while there are some incumbent ministers like that of State Transport Minister Sheela Mandal. She went ahead to actually safeguard the IAS official, but then there were people like State Social Welfare Minister Madan Sahni and also Chief Minister Nitish Kumar himself, who actually raised their eyebrows on what all transpired. And interestingly, as far as Chief Minister Nitish Kumar is concerned, he is of course in no mood to let this go in a hush-hush way. And interestingly, he said that inquiry will be done and that the action will be taken in case the official concerned is found guilty. Thank you so much for getting us all those details. In fact, the Times Network earlier spoke exclusively to the student Riya Kumari, who is the person we're talking about, the student who posed some tough questions to the officer, but unfortunately was then shot down. In fact, listen in. हमारी सोच ये थी कि अगर हम लोग वहाँ पे बात को रखेंगे तो वो मैडम हमारी बात को आगे सरकार तक ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग अचानक से बड़े आदमी से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री हो गए, ये मुख्यमंत्री हो गए, तो वो लोग से हम लोग को मौका नहीं दिया जाता है मिलने को। हम लोग सोचे कि वहाँ पे हम लोग अपनी बातों को रखेंगे तो वो मैडम हमारी बातों को आगे लेकर जाएंगे, वही सोचकर हम लोग बोले। लेकिन रिस्पांस तो बड़ा अजीब सा आया आपके लिए। तालियां भी बजी थी वहां पर, काफी लोगों ने ताली बजाई थी और लगता है कि उसी को देखकर शायद मैडम का पारा चढ़ गया। जी, सब तालियां तो बजाई थी हमारी बातों पे, लेकिन हाँ मैडम तो अपना बात रखी। मैडम बोली कि कौन कौन लोग ताली बजाए हैं वो लोग थोड़ा सा हाथ खड़ा कर लें। ये भी हुआ? हाँ, नाम भी लिखा गया क्या जिन लोगों ने ताली बजाई थी? नहीं, सिर्फ हाथ ही उठाया गया था। वैसे तो सुबह से 5-6 मीडिया वाले लोग आ चुके हैं, सब लोग बधाई देने के लिए, और अभी और लोग का फ़ोन आ ही रहा है। आप तो सब लोग बधाई तो बहुत लोग दिए हैं। हमारी बात ऐसे तो हम लोग बहुत सारा सवाल ये सोच कर गए थे, जो घटनाओं को हम लोग देखते हैं स्लम बस्तियों में, वो हम लोग सोच कर गए थे कि सब बातों को अपना वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा मौका नहीं मिल पाती है कि हम लोग अपनी बातों को रखें।
तो हम लोग का बहुत सारा ऐसा सवाल था जो कि अभी मैं बताऊंगी। जैसे कि हम लोग के मोहल्ले में जैसे मैडम ने भी जवाब दी कि हर लोग को शौचालय अलग अलग घर में है क्या, तो इस पे भी कहना चाहेंगे कि कुछ लोग का तो अलग अलग क्या घर में है ही नहीं शौचालय। 5 रुपया 10 रुपया देकर वो लोग रोड पे जाती हैं। जैसे अब मान लीजिए स्नेपरी पैड का ही बात है, तो हम खुद के लिए तो ले लेंगे लेकिन बहुत लोग को नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि हम लोग खुद इतना नहीं हो पाता है तो दूसरों को कहाँ से देंगे। लेकिन जो हमारी सरकार है वो तो कर पाएंगे, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैट्रिक में फर्स्ट आने पे 15,000, इंटर में फर्स्ट आने पे 25,000 देते हैं, बीए में फर्स्ट लाने पे 50,000 देते हैं। तो क्या हम लोग का छोटा सा 20-30 रुपये का स्नेपरी पैड हर स्कूल में या फिर और सारी जगहों पे फ्री नहीं करवा सकते हैं?